Good morning, everyone. Today we are going to start deficient demand and excess demand, chapter 7, because we have already completed chapter 6, income determination chapter, in which we have studied a lot aggregate demand, aggregate supply, income curve, multiplier, etc. All these are discussed. Today we shall discuss the topic is deficient demand and excess demand. First we shall discuss deficient demand, or in other words it is also termed as deflationary gap, because deficient demand creates deflationary gap. Let us first discuss what is deficient demand. So write down deficient demand. It refers, or right here, deficient demand refers to a situation where actual aggregate demand actual aggregate demand falls short the aggregate demand required for full employment level of output. So what is this? Deficient demand refers to a situation where actual aggregate demand falls short. Actual aggregate demand गिर जाता है. The aggregate demand required for full employment level of output, because as you know, full employment level of output occurs when the aggregate demand is equal to the aggregate supply. Or you can say in other words, when the aggregate full employment aggregate demand is equal to aggregate supply or income curve. It will be clear more when we shall discuss through a diagram. What we discuss, let's discuss first through a diagram, then it will be clear more. Draw all of you a diagram. Here we are measuring output on x-axis. So write down here output, and we are measuring here aggregate demand. So adding, you can write here, draw income curve. As you know, 45-degree line is income curve. You have studied already earlier y equal to c plus s equal to as. All these three are same. This is 45-degree line is known as income curve. Now we shall draw the actual aggregate demand curve. You know aggregate demand curve is upward sloping curve, and this is the aggregate demand curve at full employment level of output. It intersects at point E.
This point E is full employment equilibrium level of output. We shall write everything. I shall write in explanation when we shall discuss. Let me draw this one. Point E determines OM equilibrium level of output. This level of output is equilibrium level of output because output we are measuring on x-axis and on y-axis we are measuring aggregate demand. Now what happens due to certain circumstances occurs in the economy, that region we shall discuss. Due to certain regions this aggregate demand falls short, नीचे गिर जाता है, डिमांड फॉल हो जाता है इकोनॉमी में. तो क्या होता है, अब देखो डिमांड फॉल हो जाता है तो डिमांड कर्व ये फॉल कर गया, आप देख रहे हो. और ठीक इसके पैरेलल में हम लोग एक एडी बना रहे हैं. दिस इज द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल. ये डिमांड फॉल हो गया. नाउ इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस एट पॉइंट E1. यहां E1 यहां इंटरसेक्ट कर रहा है. तो दिस इज द अंडर इक्विलिब्रियम. दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन में. वी शैल राइट एवरीथिंग. एक्सप्लेनेशन में सारा चीज लिखेंगे. और यहां E1 बिकॉज़ नाउ गिरने के बाद अब इसको काट रहा है इनकम कर्व को कहां पे, E1 पॉइंट पे. तो दिस इज आल्सो इक्विलिब्रियम लेवल है, बट विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ये अंडर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है. यू कैन नोट डाउन हियर, आप मार्क दे सकते हो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल. वैसे एक्सप्लेनेशन में वी शैल राइट. एंड ये जो EL है गैप, ये गैप, this gap is called deflationary gap. Write down here deflationary gap. ये डिफ्लेशनरी गैप है EL. हमने रिमार्क कर दिया है यहां पे, आप लोग डायग्राम में करो ऐसे. दिस इज द डिफ्लेशनरी गैप. नाउ try to understand what happens due to certain regions this aggregate demand falls short and it intersect income curve at point E1. So this is the situation of underemployment. You can write down here by indicating like this: full employment equilibrium, full employment equilibrium, this point, and this point is E1 is underemployment. This condition is underemployment E1. So two situations occurs here. With this explanation, what we find, two things we find here. First is at point E AD equal to AS, actual aggregate demand equal to A. But here we find two things. What we find at this E1, we find that AD less sign you will ADR. This we find at under equilibrium situation AD. दूसरा चीज what we find, second thing we find here ADF in deflationary gap. What happens? This deficient demand causes deflationary gap or deflationary gap which is equal to, it means what, ADF minus AD. ADF at ADF का जो डिमांड है this much, but here is only this much aggregate demand. So this gap is deflationary gap. You write this one, or you can write which is equal to EL. ये गैप जो डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट कर रहा है that is equal to
EL. So you can note down this one. Now I am going to write the explanation. इसका explanation हम लिख रहे हैं. कैसे आप लोग लिखोगे? Explanation of the deficient demand. Write down. In above diagram, yeah, I shall write here in adjacent diagram. In I am writing above. So मान लो ये ऊपर में है. You will write also above. तुम लोग इसके नीचे लिखोगे. ऐसा although I should write adjacent diagram. I am writing adjacent diagram लिख देता हूँ मैं. In adjacent diagram, ADF intersects income curve at point E. Point E is थोड़ा मिस्टेक हो जाता है. Point E is full employment equilibrium level which determines just a minute. Point E is just a minute. Correct little bit. Point E is equilibrium point which determines full equilibrium level of output. Full equilibrium level of output. Full employment, write down. Full employment equilibrium level of output, IE, that is OM. Full equilibrium level of output is what? OM. And point E is equilibrium level of output. Now actual aggregate demand actual aggregate demand falls short and cuts income curve at point E1. Point E1 is under equilibrium employment under employment equilibrium level of output. Just a minute. Under employment
Underemployment, CURVE, curve, income curve at point E1. Point E1 is under equilibrium level and underemployment equilibrium level. Underemployment equilibrium level, which creates deflationary gap in the economy, which is equal to EL as shown in the diagram. Now write down this explanation. What I have written in our diagram, aggregate demand of full employment ADF intersect at point E. Point E is equilibrium point of full employment level of output, which determines OM equilibrium level of output. Now what happens? Aggregate demand falls short and becomes AD. This intersect income curve at point E1. This point is the under equilibrium employment, which creates deflationary gap in the economy, which is equal to EL. This much is deflationary gap as shown in the diagram. This you should write. Now this much sufficient. Now write down reasons for. I do hope you have understood very well. Now write down reasons for under deficient demand or deflationary gap. Reasons for deficient demand. Now why this demand falls short? This area falls short. What is the reason behind it? So write down. First reason write down reduction in public first of all the first reason is reduction in public expenditure. As you know, once expenditure, several times I have discussed with you, एक का खर्चा once expenditure, once apostrophe है यहाँ पे, एक का खर्च becomes the another's income. अगर आप लोग एक टॉफी भी खरीदते हो ना, तो बहुत सारे लोगों का इसमें इनकम होता है, रिटेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, मैन्युफैक्चरर का, लेबरर्स जो वहां टॉफी बनाने में काम करता है उसका, तो 1 रुपये की टॉफी बहुत जगह पैसे बढ़ जाती है वो. सो whenever you are spending money, the once expenditure becomes others income. तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर अपना घटाती है. अब एक्सपेंडिचर घटाती है, मान लो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज गोइंग ऑन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज गोइंग ऑन, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ये है ना सरकार का एक्सपेंडिचर. रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इज गोइंग ऑन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज इज गोइंग ऑन. इट मींस गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी, और वहां पर पीपल दोज हु आर वर्किंग दे आर गेटिंग इनकम. बट व्हाट हैपेंस नाउ? ड्यू टू रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर the income reduces. As a result, this demand also increases, because as you know, demand of any commodity depends upon the income.
अगर आपका इनकम नहीं है तो क्या डिमांड कर पाओगे क्या? अगर आपका इनकम है only then you can demand in the market. So it is totally, it depends upon the income. So whenever there is reduction in public expenditure, the aggregate demand falls. Have you understood? Public expenditure में आप लोग क्या दोगे? Reduction in construction of dam, reduction in expenditure on construction of roads, railways, electrification. There are so many expenditure, hospitals, buildings, school, etc. So first of all the reduction in second जो है वो है decrease in second cause, write down decrease in disposable income, decrease in disposable income as a result of increase in tax. Now what happens? Disposable income falls short. डिस्पोजेबल इनकम क्या है? मैं पिछले बार भी बताया हूं, आज मैं फिर बता रहा हूं। आपका इनकम मान लो 50,000 है, अगर आप 10% टैक्स दे रहे हो, मान लो योर इनकम इज 50,000, 10% टैक्स, हाउ मच? 10% टैक्स यू हैव टू पे। तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 5,000 होगा। दिस 5,000, इसको माइनस कर दो, तो ये 45,000 जो हुआ, दिस इज योर डिस्पोजेबल। ओनली यू कैन डिस्पोज दिस वन। ये आप खर्चा कर सकते हो, लेकिन ये 5,000 खर्चा नहीं कर सकते हो, बिकॉज टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट पेड टू द गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग डायरेक्ट बेनिफिट। किसी प्रकार का बेनिफिट के बगैर, तो डिस्पोजेबल इनकम में कमी हो गई, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टैक्स। दैट इज व्हाई मान लो पहले 10% था, अब क्या किया सरकार ने? इसको 20% कर दिया। 10% से अब टैक्स इंक्रीज करके 20% कर दिया इसको, टैक्स को। तो व्हाट विल हैपन? पीपल हैज टू, अब इस 5,000 के जगह पे 50,000 अगर इनकम है तो उसको 20% कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो 10,000, अब उसकी इनकम जो हुई 40,000 हुआ, पहले 45,000 था, अब 40,000, 5,000 और घट गया। तो ये अगर सारे लोगों के साथ ऐसा होता है तो कैलकुलेट करो, इकोनॉमी में बुरी तरह से द इनकम विल रिड्यूस, एज ए रिजल्ट ऑटोमेटिकली द डिमांड विल फॉल शॉर्ट, दैट क्रिएट्स डिफ्लेशनरी डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप। ये आप समझ गए होंगे। दूसरा रीजन है डिफ्लेशनरी डिफिशिएंट डिमांड का, डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम एज ए रिजल्ट इंक्रीज इन टैक्सेस। जब इंक्रीज इन टैक्स हो जाता है तो लोगों का इनकम घट जाता है, जिसके चलते ये जो एग्रीगेट डिमांड है गिर जाता है। समझ में आ गई? तीसरा कॉज जो है डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, तीसरा लिख लो आप लोग, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, इसको कॉमा में कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है। इन्वेस्टमेंट डिमांड एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन बैंक रेट, व्हाट हैपेंस? डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, बिकॉज डिमांड में दो तरह का होता है, C+I। आप लोगों को पता है कि एडी जो होता है एग्रीगेट डिमांड, C+I होता है कि एक कंजम्पशन डिमांड और एक होता है इन्वेस्टमेंट डिमांड। डिमांड में दो ही चीज होती है, C+I, पिछले बार में हम लोगों ने सीखा था। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज पीपल विल बोरो मनी फ्रॉम द बैंक। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो वो ज्यादा लेगा, एज ए रिजल्ट कैपिटल गुड्स का डिमांड होगा, people will spend money more on the invest more in the economy। लेकिन what happens
कि बैंक रेट इंक्रीज कर गया है। तीसरा कारण क्या है? डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट हैज इंक्रीज्ड, तो बैंक रेट जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? व्हेन बैंक रेट इंक्रीजेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो इंक्रीजेज। बैंक रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों तो अलग अलग चीजें हैं। बैंक रेट, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई अपने यहां एडवांसेस लोन टू द कमर्शियल बैंक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कहते हैं व्हेन द कमर्शियल बैंक एडवांसेस लोन टू द पब्लिक पीपल पे। हम लोग प्राइवेट पीपल, हम लोग जो बैंक लेते हैं लोन से, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बैंक रेट कहते हैं जब कमर्शियल बैंक लोन लेती है इससे, सेंट्रल बैंक से, तो सेंट्रल बैंक चार्जेज इंटरेस्ट, तो दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। तो जब बैंक रेट राइज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन बैंक रेट, तो नेचुरली रेट ऑफ इंटरेस्ट विल आल्सो हाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हाई होगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड विल फॉल। पीपल महंगे रेट पे कभी भी नहीं लेगा, लोन नहीं लेगा बैंक से। एज ए रिजल्ट सीधे वो डायरेक्टली इट इंपैक्ट्स द इन्वेस्टमेंट डिमांड। और इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या है? द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक गुड्स, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स पर खरीदना, व्यापार में लगाना, लैंड पे लगाना, बिल्डिंग पे लगाना, और रॉ मटेरियल पे खर्च करना, इन्वेस्ट करना फॉर द बिजनेस पर्पसेस, सो दैट इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉल्स। एज ए रिजल्ट ये एग्रीगेट डिमांड गिर जाता है, क्योंकि इसमें दोनों चीज है ना, सी प्लस आई बोथ इट इंक्लूड्स, तो इट फॉल्स शॉर्ट। तीसरा कारण हुआ। चौथा कारण है रीजंस फॉर डिफिशिएंट डिमांड का कम डिमांड होना इकोनॉमी में। वो चौथा कारण है डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आ गया है। मान लो आपका गेहूं हम लोग बेचते थे दूसरे देश में, वी आर गेटिंग मनी, बाहर से पैसा आता था, तो यहां पर लोगों का इनकम बढ़ता था। अल्टीमेटली गेहूं तो फिर उपजा लेंगे ना हम लोग, फिर अगले साल हम लोग काफी कर लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ सरप्लस है। एक्सपोर्ट तभी करेंगे जब हमारे यहाँ सरप्लस होगा। तो अब क्या हुआ? ड्यू टू सर्टेन रीजन, अदर कंट्री में सप्लाई ज्यादा हो गया तो डिक्लाइन हो गया हमारा, एक्सपोर्ट नहीं कर पाए हम इन द वर्ल्ड, वी आर अनेबल टू सेल इन द वर्ल्ड। तो अब एक्सपोर्ट नहीं होने की वजह से, ज्यादा नहीं होने की वजह से, डिक्लाइन कम होने की वजह से इनकम हमारा कम आया, और जब इनकम कम आया तो नेचुरली इट डायरेक्ट अफेक्ट्स द इनकम ऑफ द पीपल, लोगों की इनकम में, और जब इनकम घटेगा तो नेचुरली द एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट। तो ये चारों कारण आपका, पहला रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, दूसरा डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टैक्सेस, तीसरा कारण हुआ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन बैंक रेट, और चौथा जो कारण है डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। ये चार रीजन होता है डिफिशिएंट डिमांड का, कम डिमांड होने का इकोनॉमी में, जिसके चलते डिफ्लेशनरी गैप इकोनॉमी में होता है, जो कि अभी मैंने डिफ्लेशनरी गैप आपको यहां बताया है। अब इसका इंपैक्ट क्या है आप लोग लिख लीजिए इसको, मैं इंपैक्ट यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं। इंपैक्ट एक लाइन में है, लिख लो आप लोग सभी। इंपैक्ट मैं लिख देता हूं आपको यहां पे। इंपैक्ट, इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या होता है, एक मार्क्स का आप लोग को पूछ सकता है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डिफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो मैं थोड़ा यहां पे ब्रैकेट करके लिख देता हूं, इंपैक्ट ऑफ, एक लाइन का है, इंपैक्ट ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। इसका इंपैक्ट क्या होगा, लिख लो आप लोग, इट reduces the income output and एम्प्लॉयमेंट। ये तीन चीज को इफेक्ट करता है। क्या क्या इफेक्ट करता है? impacts of efficient demand, it reduces the income, output and employment।
ये तीन चीज पर इफेक्ट करता है, घटाता है डिफिशिएंट डिमांड। ये हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग इसको एक अलग टॉपिक में बताएंगे आपको, मेजर्स टू करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। अब ये डिफ्लेशनरी गैप को फिर हम ऊपर कैसे कर सकते हैं, हाउ इट कैन बी करेक्टेड, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर इसके साथ हम बनाते हैं तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको बोरिंग फील होगा। तो इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो, पहले मैं इसके बाद आपको इन्फ्लेशनरी गैप बताऊंगा, एक्सेस डिमांड, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, यहां पर डिफिशिएंट डिमांड है और एक्सेस डिमांड है, आप देख सकते हैं यहां पे एक्सेस डिमांड। इसके बाद मैं आपको एक्सेस डिमांड बताऊंगा जो कि इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करता है इकोनॉमी में, उसके रीजंस क्या होते हैं वो बताऊंगा। तब जाके एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें कि मेजर्स, उपाय टू करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, उसका अलग आएगा। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से लिख लेना और समझ गए होंगे आप लोग, अच्छी तरह से याद कर लेना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरी ईयर, आइदर इन डिफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप और inflationary gap is asked in the economy. Thank you very much.